सो बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 9 है आज। हम लोग ने क्या कवर किया था बताओ स्टार्टिंग में? फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट एंगल, है ना, एंगल कैसे बनते हैं, व्हाट इज एंगल, हाउ टू ड्रॉ एंगल, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? एंगल के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद क्या सीखा हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हम लोगों ने क्या सीखा? वी हैव स्टडीड अबाउट एएसटीसी रूल, है ना। एएसटीसी रूल से हम लोग को क्या पता चला कि एंगल्स को 360 डिग्री एंगल को वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। एंड 4 पार्ट्स क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट्स हम उसको कह सकते हैं ईच क्वाड्रेंट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 90 डिग्री एंगल, है ना। इन ईच क्वाड्रेंट देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ 90 डिग्री दैट कैन बी मेड, है ना। ओके, फिर उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएसटीसी? In first quadrant, all functions will be positive. In second quadrant, sine will be positive. In third, tan will be positive, and in last, cos will be positive. cos will be positive in the fourth quadrant. फटाफट एक क्विक रिवीजन देख लें, क्योंकि लास्ट क्लास का आपको याद ही नहीं रहता है ना। आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ अभी तक? क्यों? किसी ने मुझसे डाउट नहीं पूछा, मैं ही पूछूंगा। मुझे बहुत डाउट है आप लोग पे, ठीक है। सो वी आर स्टडीइंग एएसटीसी, है ना। एएसटीसी रूल पढ़ रहे हैं वापस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एएसटीसी द एंगल विल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, द फर्स्ट एंगल विल बी टिल 90 डिग्री, ठीक है। द रेंज, द एरिया कवर्ड बिटवीन 0 to 90 डिग्री विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। And beyond 90 to 180 it will be second quadrant, and after 180 to 270, so this is your 180 degree. So I have written it in the form of radian, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ओके फाइन, and this will be 3 pi by 2 or 270 degree. This is in the form of radian, this is in the degree. Okay, so in this range angle greater than 180 and less than 270 will be your third quadrant. Okay fine, it will be quick revision, हम फटाफट स्टार्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। Beyond 270 till 360 another 90 degree, another 90 degree ना। So it will be written as 2 pi or 360. 2 pi is in the form of radian and this will be in the form of degree. Okay, ठीक है boss. So this region will be called as fourth quadrant, right? Okay. Now define ASTC. Now define ASTC. A for all trigonometric functions are positive. When we say all, how many functions will be there? So majorly there is 3 type of functions: sin theta, cos theta and tan theta. And there is also existence of their reciprocal named as, what is the reciprocal of sin theta? Cosec. So cosec theta is nothing but 1 upon sin theta, and then sec theta is nothing but reciprocal of cos theta, and last will be cot. So I am writing it above this. So cot theta will be equal to reciprocal of, is it clear? So all trigonometric functions will be positive when the angle is in the range of 0 to 90, right? It means cos 45 will be positive, sin 45 will be positive, cot 45 will be positive, tan 45 will be positive, and so on, right? Cosec and sec will also be positive. What about the second quadrant? When the angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, only sin theta will be positive and also its reciprocal, right? So reciprocal means cosec theta will be, all remaining will be negative. Simple, ठीक है। Okay, next
For third quadrant, when the angle will be greater than 180 and less than 270, tan. So just remember this: A for all, S for sine, T for tan. We never mention about reciprocal because reciprocal will already will be adjusted according to the value of the main function. Because sine is positive, cosec will automatically become positive because it is equal to 1 upon sine theta. Okay, fine. So if tan theta is positive, it means cot theta will automatically become positive because it is equal to 1 upon tan theta. Okay, so you don't have to remember it separately. A, S for sine, T for tan. Then in the last quadrant, when the angle will be greater than 270 and less than 360, only cos theta will be positive. Okay. Then reciprocal of cos theta will also be positive because it totally depends upon the value of cos theta. If cos theta is positive, it will be automatically positive. Simple. तो क्यों पहले नहीं पता था आपको? सब कुछ मैं बताऊं? हाँ ठीक है, तुमको पता था और वो ऐसे देख रही है ऐसे, मेरे को पता था, चीख चीख के बता रही है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था उन्होंने? So 2 and pi plus theta. So we have studied about the angle property of the trigonometric functions, है ना? So we have created some general formulas, है ना? जनरल फॉर्मूले से क्या मिलता था? हमें कोई भी वैल्यूज निकालना आसानी था, जैसे for tan 180 plus theta. So 180 plus theta, it means the value will be in the third quadrant. Whatever the value of angle will be depend upon theta as well as it will be greater than 180. तो कहाँ आएगा ये, कहाँ पर पहुंच जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से ज्यादा है, 180 में मैंने 20 ऐड कर दिया, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 200 will be lying between 270 और 180 के बीच में, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, राइट? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? tan की। कुछ नहीं आता लेकिन पॉजिटिव तो लिख ही सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या सिखाया था? 180 और 360 के लिए क्या होगा? tan है तो आंसर इसमें आएगा। If the function is tan, then the answer will also be in tan. And the nature of the function will be decided according to ASTC rule. If ASTC says that it is positive, then it will be positive, else negative. ठीक है? समझ में आ रहा है? याद नहीं है? कल पेपर है, परसों संडे को पेपर है आपका, है ना? पहला टेस्ट होगा, सेंटर पे होगा, सेंटर पे ही आके देना है, घर से नहीं देना है। सिस्टम नहीं है, ठीक है? और याद कुछ नहीं है। चलिए, सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सीधे से स्किप करते हुए धीमे से कहाँ आएंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? To understand differentiation, we should know about function and variable, है ना? उसके बाद फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जो फंक्शन होता है वेरिएबल से डिपेंड होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, वो हमेशा अपने मन का करता है ना? फंक्शन क्या करता है बेचारा? वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वेरिएबल बदलेगा तो फंक्शन भी बदल जाएगा, ठीक है? फंक्शन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल। As per the dependency of function on variable, it will be decided that what is the value of function. For example, बार बार यही एग्जांपल आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, for x is equal to 1, y is equal to 5, x is equal to 2, y is equal to 7 and so on, right? So x is your variable, x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, y क्या हो गया? फंक्शन। अब ये जो चेंज आ रहा है, what is the rate of change of y with respect to x? मतलब ये जो चेंज आ रहा है y का, ये किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है ना? इसी को डिफाइन करने के लिए क्या कंसेप्ट आया आपका? डिफरेंशिएशन। कितना भी पढ़ा लो लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, है ना? अब इतनी बड़ी सी छड़ी रखी, इसे फेंक, नहीं हंटर। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नहीं आता है तो इंटीग्रेशन तो भूल जाओ, बिकॉज जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो इंटीग्रेशन है,
और इंटीग्रेशन क्यों मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, लॉगरिथम मुझे पढ़ाना था, लेकिन तुम लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि 12th में जो आपका बार बार इंटीग्रेशन आ रहा है उसमें हेल्प हो जाए, ठीक है। डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या था जल्दी से बता दो। व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा? तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको मैक्सिमम बोलते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको मिनिमम बोलते हैं। नॉट सेटिस्फैक्टरी। So any function will have some maximum value and minimum value at a certain value of x and y, x only. At some value of x, the y will be maximum. At some value of x, the y will be minimum, right? यही दो क्राइटेरिया हो सकते हैं ना। चलो जरा मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन सर इन दिस केस देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन ही नहीं है सर। नियर का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि क्या ये निश्चित है कि y की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? निश्चित है ये तो तुम्हारे मन के ऊपर है ना। तुमने x की वैल्यू 1 करोड़ रख दी है ना, लेकिन मैंने यहीं पर एक बाउंडेशन लगा दिया, मैंने बोल दिया x will be less than 10 and greater than 1. Now the limitation is there. अब आपके पास limited number of values हैं, है ना? You can choose only limited number of, मतलब कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, है ना? तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then नहीं ले सकते। बस यही तुम्हें जानना था, ये हंटर चाहिए जो गलत करे, है ना? Because it is less than 10, not equal to 10. अभी यहाँ पर क्या कहते हैं? If I am going to change it to less than or equal to, then you can take the value x is equal to 10 as well. Okay? Now tell me what is the maximum value of y? और किस वैल्यू पे हो सकता है? ऐसी कौन सी वैल्यू x की हम पुट कर दें such that y क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। बताओ जल्दी से बताओ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा मैंने। इट्स सो सिंपल एज दैट। और भी हो यहाँ पर सारे एडिशन के फॉर्म में है ना? जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर दोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा। एंड मिनिमा क्या होगा? सबसे लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अभी अगर हम कितना भी सरल क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन वो सवाल अब मैं चेंज कर रहा हूं। अब बताओ what will the maximum value of y and what will the minimum value of y? आपको अभी भी x की वैल्यू कहां से चूज करनी है? 1 से नहीं। देखा वही बता रहे, यू डोंट हैव IQ। IQ क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत सिंपल था, मैंने नेगेटिव कर दिया। अब x की वैल्यू जितनी बड़ी हो जाएगी उसके हिसाब से अब यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मैंने कुछ खास नहीं किया। और फिर मिनिमम हो जाएगी तो क्या होगा? तो आंसर अभी वही आने वाला है। आंसर सेम था, लेकिन उसको सोचने में इतना ना, क्योंकि बिकॉज यहाँ नेगेटिव आ गया। अरे यार जो भी वैल्यू आ रही थी इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म विल बी मैक्सिमम, है ना? अगर 9 पुट कर देंगे तो भैया 18 आ जाएगा। मैक्सिमम 18 आ सकता है, 18 में 3 घट गया, है ना? 15। फिर लास्ट 2 पुट कर देंगे, ठीक आ जाएगा। 4 2 2 जा 4, 4 - 3 1, यही तो होगा। आंसर तो अभी वही था। मतलब मैंने सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला, कुछ नहीं यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है? तो आंसर अभी भी क्या है सर? एट x is equal to 1, y will be minimum at x is equal to 2, it will be equal to 1, and at x is equal to 9 the y will be equal to 15. Is it clear? सिंपल था, है ना? ये हो गया एक रफ आइडिया व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक? बट बाय डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हैं? किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे होगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है? एक बार इंग्लिश में बता दिया, एक बार हिंदी में, ठीक है? ठीक है, मैं माते, ठीक है? चलो, तो वो कंडीशंस क्या है ये मैंने सिखा दिया था। अभी तुम बताओ फटाफट। ये सब पुराना टॉपिक है, मुझे आगे बढ़ना है। कोई है कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं पूरा डिटेल में आपको बता सकता हूँ? क्या पढ़ा फिर? पढ़ने का मतलब ही नहीं। इतनी सिंपल सी बात है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। गलत ही बताओगे ना, गाली दिखाओगे तो 4 बेइज्जती होगी।
अच्छा मैं ये जब गाली बोलूँ, गाली में तो गाली नहीं होता, डांट होता है, ठीक है। थोड़ा सा पहले से डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बताओ, देख के बताओ यार, सामने लिखा है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब तक हम होते खड़े हो जाते, भले क्या होगा। गलती तो बताएंगे, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है जब वो 0 से कम होती है तो वो मिनिमम कहलाती है, मिनिमम डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन माते देखो 2 बार डिफरेंशिएशन किया था मैंने, इसके बाद ये जब लेस देन आएगी तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम कंडीशन है। द फंक्शन विल बी मैक्सिमम। उल्टा होता है एक्चुअली, हम ये वर्ड सोच के देख के चलते हैं, याद कैसे नहीं होता है, गलतियां कैसे होती है, सिली मिस्टेक। मैक्सिमम वर्ड देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ठीक है। तो वहां पर लेस होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। जब आपका फंक्शन लेस देन, न डबल डिफरेंशिएशन मतलब कहने का मतलब है 2 बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सेम फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 है, तो आपका वो जो पॉइंट था एट विच वी आर डिफरेंशिएटिंग x की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर अगर ग्रेटर देन आ गया तो वो एक्चुअली x की जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, ये वाला। ये फंक्शन है, मुझे नहीं पता है x की वैल्यू, है ना, तो पहले x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 क्या था, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस। उसका क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करना है, सो दैट यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और इट इज नॉट क्लियर येट, जब तक आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो क्या आ जाएगा, फटाफट। मैं ये करवाना नहीं चाह रहा हूं लेकिन आपके लिए करवा दे रहा हूं, आपने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया, ठीक है। फटाफट आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। एक फॉर्मूला क्या था, व्हेन y is equal to x to the power n, dy by dx will be equal to n into x to the power n minus 1। ओके, ये सारे प्रीवियस टॉपिक है ना, ये सारे प्रीवियस टॉपिक है बॉस, जल्दी बताओ आंसर, पेन नहीं चलनी चाहिए। 2 इसका आंसर आएगा 1/5। अच्छा तुमने तो आंसर रख लिया। हाँ ठीक है सही बता रहे हो। 10x minus 2, ठीक है। कैसे किया हम लोग ने, यही एक सिंगल फॉर्मूला है वही यूज कर लिया, बिकॉज डिफरेंशिएशन किसी भी, अगर देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज रेट मेजरर, है ना, रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है ये, किसको, y की वैल्यू में जो चेंज आएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लो 1 लिख दिया मैंने, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 2 तो नहीं बन जाएगा, 1 2 तो नहीं बन जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है, 1 पहले भी 1 था, बाद में भी 1 ही होगा, तो इसका कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ चेंज 0 आएगा, ठीक है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर उसको कांस्टेंट भी कहते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आई थिंक ये मैंने आपको पढ़ाया था। सर एक क्वेश्चन है जो ये वाला आपने दिया था, उसके बाद 7x की पावर क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें अगर जब मैंने एक बार आप सॉल्व कर देंगे तो उसके बाद इसको दोबारा सॉल्व करना है। कहना क्या चाहती है ये, अभी समझ नहीं। पहले तो क्या करना है, लास्ट में क्या आएगा, पावर 2 के एक x बच जाएगा, है ना। पहली बात तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक x बचेगा, क्यों, क्योंकि मैंने पावर 3 रखी है ना। 3 से क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से क्या आएगा, 1 आएगा, पावर 1 आएगा, x आएगा, है ना। और पहले वाले में जब x स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब वहां से हमें इक्वल टू 0 करने पर 2 वैल्यू ऑफ x मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सिंपल। हां ये जाने दो। फिर वो 2 वैल्यूज जो मिलेंगी, उन दोनों वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे, मतलब वो तो वैल्यू निकाल के रख लो। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डबल डिफरेंशिएट द होल इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x, so you will get 2 values, right? So if one is positive and one is negative, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गई, अगर x की वैल्यू मैंने पुट करी, एक बार मैंने 2 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक था, मतलब मान लो कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, राइट, व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, है ना। मान लेते हैं एक आपके आ गई d और एक आ गई x = e, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसमें पुट करेंगे। फिर इफ d2y/dx2 is greater than 0 मींस ये वो वैल्यू x की जिस पर फंक्शन क्या है, मिनिमा, एंड इफ इट इज लेस देन 0, अगर ये छोटी आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब वो x की वैल्यू पर क्या है, यही तो मैंने सिखाया था उस दिन,
बस इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, चलो एक सवाल तो आया, कम से कम एक सवाल तो पूछा, क्योंकि अभी हम पेपर के बाद बहुत सवाल पूछेंगे, कितनी पढ़ाई हो रही। ठीक है, पेपर बन गया तुम्हारा। नेक्स्ट, फिर क्या करना सिखाया था मैंने? dy by dx आपका कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 10x minus 2, राइट? इसका मैंने क्या सिखाया था? फिर से क्या करो, नाराज हो गया ये। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या करना है? जस्ट डिफरेंशिएट इट अगेन, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? आंसर क्या आएगा? 10. So d2y upon dx2 is greater than 0. तो x की जो वैल्यू भी आने वाली है वो क्या है? मिनिमा। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या सिखाया था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x you have to equate it to 0. So 10x minus 2 is equal to 0. x is equal to 1 upon 5. So this is the value of x at which y will be minima. Y will be minima. Right? ऐसे अप्लाई करते हैं कंसेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ कैन वी स्टार्ट इंटीग्रेशन? चलिए, now we are going to start a fresh topic, integration. Okay. So before starting integration, we have studied about summation, right? नहीं पढ़ा? चलिए, कोई बात। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग ने समेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं ना, व्हाट इज समेशन एंड ऑल। समेशन क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे मान लो, जैसे मैंने बोल दिया फोर्स, है ना? क्या बोल दिया? फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल, है ना? अब मैंने कहा कि निहारिका ने लगाया फोर्स F1 ऑन एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक? इसके ऊपर एक फोर्स लगा F1, राइट? फिर इनका जो वैल्यू था F1 की, मान लेते हैं 2 न्यूटन है, राइट? या मैं बोल दिया 2x। इन्होंने ऐसे बोल दिया, सर माय फोर्स इज डिफाइंड, मेरा फोर्स जो है वो F1 बराबर 2x है। अब मैं x की वैल्यू आपको बता दूंगी, आप डिसाइड करिए, ठीक? फिर आए कौन? हर्षित है, उन्होंने फोर्स लगाया, उनका फोर्स F2 था, उन्होंने बोला मेरा जो फोर्स है वो 4x स्क्वायर है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x, जो निहारिका बताएंगी, जो निहारिका x वैल्यू बताएंगी, वही वैल्यू पुट कर देना, आपको मेरा फोर्स पता चल जाएगा, है ना? ऐसे ढेर सारे अलग अलग, सारे शिवांश आ गए, सौम्य आ गई, आयुषी आ गई, सब आके अपने अपने फोर्स बता रहे, ठीक है? सो सिमिलरली आई एम गोइंग टू गेट F3, F4, F5. नाउ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द नेट फोर्स? क्या नेट फोर्स कितना लगा उस पेन के ऊपर? सबने आगे अपना लगा दिया, अब नेट फोर्स बता दो। तो क्या करोगे? सर आप ऐड से ऐड करोगे ना। सो जब भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है बिटवीन द वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल क्या है यहाँ पर? फोर्स, है ना? फोर्स वेरी कर रहा है, अलग अलग है ना सारे। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सारे फोर्स ही हैं। तो जब इनको ऐड करना होता है हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी समेशन, ठीक है? हम क्या करते हैं? समेशन। तो समेशन का सिंबल कैसे होता है? इस तरीके से, ठीक है? मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? F लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? F। और यहाँ पर इसको एक नोटेशन दे दूंगा Fi। और अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा इसको इस तरीके से कुछ बना दो कि ये कॉमन फॉर्मूला बन जाए। मैंने यहाँ कंडीशन दे दी कि अब आप x की वैल्यू बदल सकते हो, ठीक है? अपने हिसाब से फोर्स है, तो फोर्स का अपना एक कॉमन प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I is equal to 1 to 5. Now just change the value of I. So it will be equal to F1 plus F2 plus F3. So इस बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं समेशन यूज करते हैं। What we use? समेशन, ठीक है? So अब समेशन था तो इंटीग्रेशन क्यों लेके आए? बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन सिखाया था ना। क्या सिखाया था? हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, है ना? द रेट एट विच वी आर ब्रेकिंग इट, वही होता है आपका रेट मेजर का काम, है ना? या फिर चेंज की बात करें, मैं चेंज के टर्म में बोल दूं, द रेट एट विच वी आर चेंजिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड। मैंने यही सिखाया था ना, एक रॉड को हम कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, है ना?
इज डिफरेंशिएशन, है ना। तो वो जो अब उस तरीके से मतलब कटिंग वाली बात समझ में आ गई। अब अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम एग्जांपल ऑफ रॉड, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कट इट इन द मल्टीपल पीसेस ऑफ आइडेंटिकल लेंथ. So all the cutting pieces will be of identical shape only. So in this case there will be only length. सारे pieces आपके dx size के हैं, छोटे छोटे size के, लेकिन सारे आपके identical है। मतलब पहला पीस जैसा होगा वैसा ही दूसरा पीस, तीसरा पीस है, चौथा पीस इस तरीके से शो ऑन, ठीक। अब मैंने कहा इन सबको जोड़ के, क्योंकि मैंने जब रॉड देखी थी, जब मैंने डिफरेंशिएशन लगाया था तो रॉड की लेंथ कितनी थी, L थी। मैंने उसको काट काट के dx लेंथ में कर दिया तो ढेर सारे पीसेस आ गए, है ना। अब क्या बोल दिया, मुझे वापस से सेम रॉड चाहिए। मैंने आपको बोल दिया ये लो सारे पीसेस, मुझे रॉड बना के दो मेरी, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू सम इट, राइट, सम इट। तो समेशन यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि समेशन में, इन समेशन f1 f2 f3 आर डिफरेंट वैल्यूज। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एडिंग इट। हम क्या कर रहे हैं, f1 f2 f3 को सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है बॉस। लेकिन यहां कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, सारे अलग अलग वैल्यूज है, ठीक। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या करता है, आपका एक कांस्टेंट रेट पर एडिशन करता है। क्या करता है, ठीक है। और आपको जो आपने डिफरेंशिएट किया था वही सेम चीज आपको अचीव करवा देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन। इन इंटीग्रल कैलकुलस द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन इज गिवन, we are required to find the function. Integration is basically used for summation. Summation symbol यहाँ लिखा हुआ is used for summation of discrete value, ठीक है, different values, right? While integration is used for continuous function, the values will be at continuous level, ठीक है। So dx will be repeated continuously, and when we are going to add it, when we will stop at which, when we achieve the length L। हम कहां रुक जाएंगे, जब हमें L लेंथ की रॉड हमारी मिल जाएगी। समझ में आया। हम हर बार क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर रहे हैं। पिछली बार क्या किया, देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फंक्शन। हमें ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करते, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्मॉलेस्ट पीस जो कट किया था तुमने, डिफरेंस dx था, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट इज दिस, समेशन। कब तक करेंगे, जब तक हमें L ना मिल जाए। तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें आंसर में, x प्लस x क्या है, आपकी टोटल लेंथ, बड़ा सा जो लेंथ था, है ना, उसको L भी ले सकते हो, L भी आप लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। व्हाट इज L, L इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। व्हाट इज C देन, व्हाट इज कांस्टेंट, सर just रेट सम्स को कट कर, नहीं। सी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने जो पहला पीस कट किया, जैसे मान लो ये रॉड थी, ठीक है, मैं सब इरेज कर दूंगा, तो अपनी नोट्स में बना लेना, ये सब एग्जांपल बहुत अच्छे हैं। मान लो आई हैव लेफ्ट दिस स्पेस, दिस शेडेड स्पेस आई हैव लेफ्ट, बट इट इज पार्ट ऑफ द रॉड, राइट। आई हैव स्टार्टेड कटिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज माय फर्स्ट पीस, दिस इज माय सेकंड पीस, थर्ड एंड सो ऑन, राइट। बट आई हैव लेफ्ट दिस शेडेड रीजन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय cutting, but this is part of length, right? So I have added in the total length. तो इसका मतलब है कि मुझे ऐड करना पड़ेगा बाद में, तो ये वही है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैंने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट सी लेके चलते, देखो यहाँ पर, ठीक है, मेरी बात समझ रहे। जैसे मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो ध्यान से, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, y is equal to 2x plus 3। अब मैं डिफरेंशिएट किया, क्या बचेगा, क्या क्या आ जाएगा, 4x, 3 तो गया, ये 3 क्या है, ये भी तो पार्ट है फंक्शन का। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा, है ना, ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो ओरिजिनल पार्ट था ना। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन की कुछ लिमिटेशन होती है ना। Differentiation has some limitation because it cannot differentiate the constant part of the function. It will eliminate the constant part of the function. मतलब मैं अब हिंदी बोलूंगा, ये फंक्शन को क्या करेगा, डिफरेंशिएट जब करेंगे हम, तो कांस्टेंट पार्ट को ये एलिमिनेट कर देगा, मतलब हटा देगा। तो जो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन जो मिलेगा
वो अलग मिलेगा जो कि आपका ओरिजिनल फंक्शन था। अगर मैं इसको लेके वापस से जोड़ता जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन में सिर्फ वही वाला पार्ट मिलेगा जिसको डिफरेंशिएशन हम कर पाए थे। जब हम 3 को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए थे तो इसका मतलब वो हमें वापस से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी सिखाया मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा वो छोटा सा पीस, वापस उसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें 2x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि तुमने 2x स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन किया, 3 का नहीं किया। तो आपको इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता है, आपका रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? रिवर्सल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो आप रिवर्स करोगे तो आप वहीं पहुंचोगे जहां पर आपने, ठीक है। सो in case of integration you have to always add a constant c for such type of function। तो c क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा पूरे फंक्शन। समझ में आया? कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके फाइन। सो इफ i is integration of function fx, अगर क्या कह रहे हैं, i सिंबल यूज कर रहे हैं फॉर द इंटीग्रेशन के लिए किसी भी फंक्शन के, ठीक है, then i will be represented by, there is a symbol जो कि s की तरह दिखता है ना, फंक्शन एंड एट व्हाट रेट वी आर एडिंग, dx इज द रेट, है ना। देन क्या बन जाएगा, हमें आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ डिनोशन सीखते हैं, सॉल्व करना मैं अलग से आपको सिखाऊंगा, ठीक। दिस इज योर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? जिस चीज को इंटीग्रेट करना है तो देखो यहां पर ध्यान रखना, डिफरेंशिएट किया 4x मिला, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। मैं भी दिखा दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये मैं प्रूव कर दूंगा आपको, यही से मैं प्रूव करूंगा वापस से आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। और प्रूव करने के लिए यही लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं अभी सिखाऊंगा, परेशान मत। ये भी एक फॉर्मूला है, इससे आपको, ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे। हाँ, ऐसे गंदे गंदे चेहरे बना दिए सौम्या, अरे क्या बता रहे हैं पता नहीं, खुद ही बता रहे हैं। हाँ, ठंडी लग रही है? अरे भैया यहाँ गर्मी लग रही है, इनको ठंडी लग रही है, कुछ करो इसकी इनका। तबीयत खराब हो गई है। किसकी? खुशहाली की। ये कौन प्राणी है? आयुषी। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन विल गेट यू द differential function. Integration of differential function will get you original function with constant. ठीक है, ठीक है बॉस। चलो, तो यहां तक समझ में आ रहा है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है? बार बार पूछ रहा हूँ, एनीवन? ये ओके, ये सब इरेज कर सकता हूँ मैं? ओके, इसको रखना बस, ठीक है। ये लास्ट वाला जो फंक्शन है इसको मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कलर ही di of dx will give you a function, right। यहां पर क्या कर दिया, we have differentiated the integral। इंटीग्रल क्या होता था, i को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, function with respect, what is dx, the rate at which we are adding the function, ठीक है, रेट है। तो मैंने क्या सिखाया, व्हाट आई हैव टॉट यू, कि डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन, मान लेते हैं इट इज बिकॉज एक्चुअल में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f डैश ऑफ x, देन इफ इंटीग्रेशन इज रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज what we are doing in differentiation, we are cutting a rod, for example we are cutting a rod at a constant rate of dx, right। so we have to find the rate of change of y। what is y? y is the length of the rod, है ना। मतलब मैंने बोला कि एक रॉड थी जो कि l लेंथ की थी, तो उसको हम कट कर रहे हैं, हर बार dx पीस कट कर रहे हैं, dx लेंथ कट कर रहे हैं, तो किस रेट पे कट कर रहे हैं वो फाइंड आउट करना हमारा एम था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेम रॉड को, मतलब मैंने कट कर दिया सारे छोटे छोटे पीसेस, नाउ आई वांट टू ऐड इट टू गेट माय ओरिजिनल रॉड।
मतलब मैं उसको ऐड करना चाहता हूं ताकि मुझे पुरानी वाली रॉड मिल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसी को मतलब इंटीग्रेशन कर दूं ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन किस रेट पे, जिस रेट पे कट किया था उसी रेट पे ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, y is equal to fx। What is c? If there is any fluctuation in the original value तो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। समझ में आया? यही चीज लिखी हुई है, the same चीज written, बस उल्टे फॉर्म में। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो what is f dash x? f dash x is your differential function, है ना? Integral of differential function with respect to the rate at which हाँ we are changing the value, then we will get original function plus constant. So this example you have tried it, ठीक है? So y is equal to 2x square plus 3 is your function, है ना? ये function हो गया। function क्या होता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है? बहुत सिंपल है, सबको आ रहा है, ठीक? अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है? So I have differentiated this function, so I got this value, dy by dx किसके बराबर आ गई, 4x के बराबर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है ना? बस इसको पकड़ के बैठे रहना, बस मैं इसको ही सॉल्व करने वाला हूं। तो फर्स्ट वेयर c क्या है, आपकी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है? इसके ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअल में फंक्शन में क्या था। तो फंक्शन में 3 था तो 3 हो गया, 4 होता तो 4 हो जाता, तो आर्बिट्ररी है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। आके देखते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, आई एम नॉट गोइंग इन द डेरिवेशन पार्ट क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम कमिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है? डेरिवेशन करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था, चलिए कर ही देते हैं यार, नहीं तो कहोगे सर को आता नहीं है ना? आजकल तो प्रूव करना पड़ता है। क्या हो जाएगा फिर, ठीक है? अब आगे क्या करें, इंटीग्रेशन करना है ना? इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, इसको रिवर्स करना, ओरिजिनल फंक्शन में जाना है, ठीक है? डिफरेंशिएशन किसका किया था हमने, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ये देखो आगे देखो। तो यहां देखिए, सिंस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या करना पड़ेगा हमें रिवर्स करने के लिए, ओरिजिनल फंक्शन, है ना? इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन विल गिव यू ओरिजिनल फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता, n plus 1 x to the power n, so we have to integrate it। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है बॉस, ला नहीं गया, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x मैं इसको लिख दूं, देखो टाइम में आ रहा था मैं, ये देखो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं डिनोट कर दूं f dash of x, है ना? और क्या सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx will give you fx plus c, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ n plus 1 into x to the power n dx is equal to x to the power, is it clear? ठीक है? यहां तक तो ठीक है ना? ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी और उसको लगा दी, ठीक है? चलिए, अब अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n करना होगा dx तो क्या होगा, तो रीअरेंज कर लीजिए इसी को, देखो n plus 1 बाहर आ गया, देखो अरे आराम से ऐसे गंदे गंदे चेहरे बनाते हैं। n plus 1 क्या है, दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू, है ना? कांस्टेंट वैल्यू, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो जब भी मिलेगा तो कोई नंबर ही मिलेगा, है ना? यू विल गेट ऑलवेज अ नंबर, ओके? सो n plus 1 into x to the power n dx, यहां तक तो कुछ नहीं किया मैंने बस इसको बाहर निकाल दिया, है ना? इसको बाहर निकाल दिया, बस बचेगा क्या, x to the power n plus 1, कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, है ना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो you will get a formula x to the power n dx will be equal to x to the power n plus 1 upon, नाराज हो गया, अच्छा इसको भूत चढ़ जाता है। So this is your first formula of integration, समझ में आ गया? अब इसी को यूज करके मैं प्रूफ करने वाला हूं अपनी बात को। So we have done this for y is equal to 2x square plus 3, the differentiation will be equal to 4x, so integration of 4 को बाहर ले सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू
x to the power n dx will be equal to 4 into x to the power n plus 1. What is n? n is nothing but 1. n की वैल्यू कितनी है भैया? पेन चलाओ, पेन ऐसे ऐसे कर रही है बस, आएगा नहीं, लिख के करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है? मेरी क्लास ना कथा की तरह लगती है, हम सच बता रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा, लेकिन जैसे मैं गेट से बाहर निकलूंगा ऐसा लगेगा कि ये कहाँ शुरू हुआ था। तो याद रखना, बहुत अटेंशन आता है मेरी तरफ, ठीक है। इंगेजिंग क्लास होती है, इसीलिए थोड़ी मेहनत करिए। 4 इंटू पेन नहीं चल रही है आप उनकी, हम तो बहुत कुछ बता रहे हैं, पेन भी चलनी चाहिए। देखो मिल गया 2x स्क्वायर, देखो फटाफट, 2 2 जा 4, यू विल गेट 2x स्क्वायर। लेकिन इसमें से गायब हो गया सर, 3 गायब हो गया, इसीलिए यहाँ क्या करते हैं, हमेशा c लेके चलते हैं। समझ में आया? तो मैंने जो सिखाया मैंने प्रूफ कर दिया। तो c ऐसे रहेगा, c हाँ, ऐसे the c is representing arbitrary value which is not constant, मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्रेरी है, तो उसकी वैल्यू बदलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। सो इन दिस केस वी ऑलरेडी नो द फंक्शन, सो वी विल राइट इट 2x स्क्वायर प्लस where c is equal to 3, right? Okay, fine. अब समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्यों करते हैं? एक लॉजिक क्लियर हो गया, बार बार इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं ना भाई साहब, समझ में आ गया ना इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? नेक्स्ट करें फटाफट। ओके फाइन। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्या है, ये कंडीशन, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन पढ़ो फटाफट, परेशान मत हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो हिंदी बोलूंगा, ठीक है। नहीं का क्या लिखा है? सारी वैल्यू n की ले सकते हैं लेकिन n की वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यही होता है, जब क्लास पढ़ाते हैं तो हर चीज बताते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था? log। तो कौन याद रखेगा? तो 1/x अगर कर दिया, n की वैल्यू अगर हमने -1 कर दी, x की पावर -1 हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, मतलब इट इज 1/x, राइट। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x। तो अगर ये आंसर कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इतना डिटेल पढ़ाएंगे लेकिन वो दिमाग में बैठाना पड़ेगा तुम्हें, ये तो सब निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें फटाफट, रेडी? चलो नेक्स्ट फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो जो मैंने बोला बस वही है ना। फॉर x टू द पावर -1 द इंटीग्रेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल 1/x dx, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log base ex, व्हाट इज बेस e मैं बताऊंगा आपको आगे लॉगरिथम में। बेस e इज नथिंग बट कॉमन लॉगरिथम। जब भी बेस e हो तो कहते हैं कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है। जरा डिटेल में मत जाओ, अभी बस log x पढ़ लो, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ log x will be equal to 1/x, so integral of 1/x should be, because integration is nothing but reversal of differentiation, okay, ठीक है। इंटीग्रल विल बी इक्वल टू log base e x। चलो नेक्स्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू -1 फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। So if we know the differential, then we already know the integral because we just have to reverse it, ठीक है। If the differential of cos x
is equal to minus sin x. Then integral of sin x minus sin x will be equal to cos x. Okay, for integral of plus sin x it will be equal to minus भी मिटा देना। ठीक है बॉस, सो सिंपल है सर। अब मैं ये सारे फॉर्मूले छुपाने वाला हूं और आप तो इंटेलिजेंट हैं ही। हाइलाइटर कहां है? और सारे फॉर्मूले आप बताएंगे, ठीक है? चीटिंग तो कर ही लोगे, चीटर जो दिख रहा है ना, ये तो बता दिया। चलो बताओ फटाफट। sin x cos log x और e to the power x लिखा हुआ, एक मैं पूछ लूंगा। tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है बॉस? नहीं आ रहा। So sec का स्क्वायर, sec स्क्वायर x। चलिए बताइए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ sin x पता चल गया है। cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? ठीक है, बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x और sin x। जल्दी बताइए, ट्राई तो करिए, गलतियां करिए। माइनस क्यों होगा? जस्ट टेल मी द रीजन। बिकॉज़ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी इक्वल टू प्लस sin x ना। मैंने अभी जस्ट डेरिवेशन किया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, that is why when we were doing the integral thus there is a sign negative, right? The answer will be cos x plus cos x, but when we rearrange this negative sign तो क्या आ जाएगा बेटा? rearrange करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आ जाएगा? माइनस cos x। ठीक है बॉस, समझ में आ गया? अरे ये माइनस को इधर भेज दोगी इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, बस यही तो किया। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट ये देखते हैं, इसमें गलत बता रही थी ये। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है? cos x। तो क्या सिखाया? इंटीग्रेशन करना मतलब उल्टा कर दो, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या मिल जाएगा हमें? sin x प्लस, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट फिर डिफरेंशिएशन किया किसका? log x का डिफरेंशिएशन किया तो आंसर क्या है? 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू, रुको मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर आ गया? 1/x। इंटीग्रेशन 1/x तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, ठीक, बस सिंपल ही तो है। हाँ भाई शिवांश, नेक्स्ट तुम बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is equal to e to the power x, then integration of e to the power x will be equal to, इसने 1/x रट लिया है ना यार, कितना सिंपल है। e to the power x का डिफरेंशिएट किया तो e to the power x मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? रिवर्स करना। क्या नाम भैया आपका? हाँ, समीर। यार क्रिकेट खेल के आ रहे हो, यार स्मार्ट लग रहे हो। चलो समीर एक बात बता के जाओ यार। हमने ये कहा कि डिफरेंशिएट, अभी हम समझे डिफरेंशिएशन होता क्या है, बस ये बताओ। अगर मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कर रहे हैं तो आंसर e की पावर x आ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं जो भी आंसर आ रहा है देखना, अभी ये बताएंगे, सौम्य नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सभी बता देंगे, टेंशन ना ले समीर। बस इसको किया तो आंसर ये आ गया। ठीक है, और बोल दिया हमने कि इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो आंसर आया उसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो जो पहले जिसका तुमने डिफरेंशिएट किया था वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? तो मैंने कहा जो आंसर आया था उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो जिसको डिफरेंशिएट किया, किसको डिफरेंशिएट किया था? इसको, तो आंसर वही हो जाएगा उसका। तो आंसर कितना आएगा? e की पावर x ना। देखो यार, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx will be equal to e to the power, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक पढ़ो दूसरा ऑटोमेटिक बन गया।
पढ़ना हमें सिर्फ एक ही है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और उसका जो आंसर आया था उसी को उल्टा कर देंगे तो आंसर में, ठीक है? समझ में आ गया सबको? ठीक है। कौन से स्कूल हैं समीर? हैं? सनफ्लावर? चलिए अच्छी बात है यार। हाँ? अच्छा, कौन सी क्लास में? 11, 12? तब तो पढ़ा होगा यार तुमने। हमने पिछले साल कुछ भी नहीं किया। तो 11 ही चल रहा है, 11 है, कोई बात नहीं। अब जो वैसे बताएंगे जो अभी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो समझ गया ना, रट के जाना इस बात को। डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है उसी को उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। जितने भी डिफरेंशिएशन है रट लो, उसी का आंसर उल्टा कर दोगे तो इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा, बस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कर लो चीटिंग अब, है ना? यहाँ पर प्लस सी लगा, ठीक है? नेक्स्ट चलो एक सवाल लगाते हैं, अब आया बढ़िया, है ना? बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर बताओ बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए करने में जो मजा है वो पेन चला के भी नहीं है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx will be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। n का मतलब क्या होता है? पावर, है ना? पावर क्या है भाई? 11/2 plus 1 कितना आएगा? स्पीड नहीं है, 13/2। हाँ 13/2, ठीक है। तो एक जगह सीधे लिख देंगे, आंसर क्या है? 13/2 सर, नीचे 2x to the power 13/2 अपॉन, अब मैं करके दिखाऊंगा, ये तो ऐसे हो गया। अरे यार इसमें फैन के मोड में चल रहा है, अरे बाबा तभी तो गर्मी लग रही है। तो फैन चला दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। अरे यार इसको छोड़ दीजिए। अरे अब चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे किया हमने, हम लोग ने इसको बताओ। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। सो फर्स्ट स्टेप विल बी x to the power 11/2 plus 1 as per the formula, है ना? इंटीग्रल ऑफ दिस, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू सर हो गई 11/2, राइट? उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं n plus 1, तो x to the power n 11/2 plus 1, तो 11/2 क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा, राइट? तुम्हें आता ही? फिर 11 plus 2 कितना आ गया? ठीक है बॉस। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सिमिलरली 11/2 plus 1, ठीक है? सो इट विल बी इक्वल टू x to the power 13/2, डिनोमिनेटर में 13/2, दिस 2 विल बी इन द न्यूमरेटर, राइट? ये दो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा बड़े भाई। क्या बाल ही निहार रहे हो तुम कब से? अरे ठीक है, स्मार्ट हो। शाहरुख खान तुम्हारे आगे फीका पड़ जाता है ना? लेकिन अब पढ़ लो। तो आंसर विल बी 2x पावर 13/2 अपॉन 13। दिस इज योर, so integral of x to the power 11/2 dx will be equal to this। समझ में आ गया? अगला बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। लास्ट वाला बताओ सर, ये 6 की पावर माइनस, अरे x की पावर -6 अपॉन -6। हाँ ठीक है, ये बेकार क्वेश्चन था। बगल का वाला बताओ। ये तो ऐसे ही कर लेगा कोई भी, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ x to the power -7 dx। so n की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n is equal to -7, so n plus 1 करना है, then it will be equal to x to the power, निहारिका आप बताइए, -7 plus 1, है ना? और डिनोमिनेटर बताओ। 7/1। एरो की जा रही, अरे बस, अरे बस, अरे नहीं आ रहा है तो भैया काहे भी यहाँ बोल रही? n है, n की वैल्यू कितनी है? -7। फिर क्या लिखा है? कॉपी पेस्ट तो कर लो
और क्या भैया 7/1? ये माइनस ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? हम लोग ने सिर्फ इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर दिया। अरे मिला के इसको देख के मिला तो सकती हो ना। x की पावर -7 लिखा है, x की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है n क्या है यहाँ पर? अब तुम ही बताना, नहीं तो अगली बार फिर ठीक नहीं होगा। फिर x की पावर n+1, n कितना था? बाद में क्या किया, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? तो क्या दिक्कत है? तो इसमें नहीं क्या है, तो आंसर बताओ है? -7 + 1। अरे इसको सॉल्व ही करना होता है। -7 + 1 क्या होगा? -6 कहाँ लिखे हो? हैं? इतना सवाल लगा डाला, तुम्हारी पेन पे उतरा नहीं कोई? दिमाग नहीं चलता घर में। देखो उसे कितना दिमाग खराब हो रहा था जब घर पे हो रही। x की पावर -6/-6 यार लिखा भी करो, लेकिन शिवांश कैसे चलेगा भाई? कहानी सुन रहे हो, कथा सुनने आता है ये, इसका भी चंदा देना पड़ेगा। ठीक है, जॉन आपको समझ में आ रहा है? Okay, then ask me what is the doubt? Which portion you are not getting? कौन से पोर्शन में दिक्कत हो रही है? चलिए हम लोग इसमें ध्यान से करेंगे जिससे जॉन को भी आ जाए, है ना? चलो भैया। तो एक ही फॉर्मूला है, कौन बताएगा? आयुषी बताएंगी क्या? इस सौम्या बताएंगी। फॉर्मूला क्या है? x to the power n, xn, सही से बोला करो, x to the power n। तो इसका when we are integrating x to the power n with respect to dx, then the answer will be equal to x to the power n+1 अब डिनोमिनेटर में n+1। So now we are going to compare this question with this formula. So we have to integrate x to the power p/q with respect to dx. So according to the comparison of the formula, n will be equal to p/q, right? Right? Then according to the formula, it will be equal to x to the power n+1 upon n+1. Just put the value of n, then it will be equal to p/q plus 1 upon p/q plus 1. Simple. And then we have to just solve this LCM, है ना? तो क्या आ जाएगा? बताइए। p plus q upon q और नीचे आ जाएगा p plus q upon q। या फिर हम कह सकते हैं q into x to the power p plus q upon q upon p plus q, है ना? देखो so I am going to use this space. क्या आ जाएगा? x to the power p by q plus 1 in denominator, right? मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं साथ साथ में the LCM will be q, है ना? So LCM will be q in denominator as well, the LCM will be q, and in the numerator part p plus 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कोसेंट क्या आएगा? व्हाट विल द कोसेंट? q। सो यहाँ पर क्या जाएगा? 1 into q, यहाँ पर क्या जाएगा? 1 into q। So the final answer will be look like this, p plus q upon q, x to the power p plus q upon q in denominator p plus q upon q, right? फिर क्या करना है? इस q को, then the final answer will be q into x to the power, okay, चलिए जगह नहीं, मैं इसको आगे लिखूँ,
ठीक है, इतना लिख लो। ओके फाइन, जॉन कह रहे हैं आप समझ में आ गया सर, ठीक है। लास्ट स्टेप बताओ, ऐसे ऐसे मत करो, अभी तो शिवांश बताएंगे, यहाँ आके बताओगे, आ जाओ, सच में आप सबको बुलाएंगे कि करके प्रदर्शनी लगाएंगे सर। एक तो राइटिंग देखो, मेरी राइटिंग ज्यादा सुंदर है, कह रही थी राइटिंग आपकी जैसी, कह रही थी मेरी राइटिंग समझ रही है, आइंस्टीन के बाद मेरी राइटिंग कुछ अच्छी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप तो कर ही लोगे, ये क्यू को क्या जाना ऊपर ले आना, ठीक है, करके दिखाओ, करो। आज होमवर्क में देंगे एलसीएम, है ना, 2/3 + 1 करके लेके आओ, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर उसको डिवाइड कर देंगे दो फ्रैक्शन को, अगर हम लिखेंगे तो चलो पूछते हैं सवाल, थोड़ा सा उतारते हैं, इसका 27 हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऐसे ही बताओ हवा में, मतलब बिना पेन चलाए, ये सब एक्टिविटी कर लेना, तेज हो जाओगी तुम भी, जिसको नहीं आ रहा है यही सब सवाल लगा लो, तुम्हारी प्रॉब्लम यही हम समझ चुके हैं, ऐसे कर लेना, ठीक है। q का q अपॉन 3 का q + 1 या फिर 2q + 3q + 3q कर लेना सॉल्व। So 1/24 होगा सर। 1/24, 16 × 27 और 9 × 2 18, 18/27 × 16 कैसे करें, फिर 9 और 9 3 और 9 2 8 1/24, गुड, 1/24, अरे गजब, बड़ी बहुत बुद्धि है, ठीक है। तुमने क्या किया? सर मैंने 16, अच्छा इस वो उसको उल्टा कर दिया, मतलब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता है क्या तुम्हारे लिए, देखो सीखो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, इन डिनोमिनेटर विल बी 4 और ये क्या जाएगा 3 का बचेगा 1 3, यहाँ पर 16 आ रहा है, 8 आंसर आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा, अब तो कर लोगी ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और यहाँ क्या बचेगा 1 3, अरे 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 बार करना है, तो 2 तो कट गए, 1 बचेगा, फिर 8 जा 1/, ये भी बताओ ऐसे ही बिना किए, कौन सा और बताओगे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक हो सकता है, 27 का स्क्वायर करना मुश्किल है ना, कर सकते हैं वर्बली करो 27 का स्क्वायर। अच्छा 2-3 एक्टिविटीज जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, क्या कई बार बैठे बैठे खाली 3-3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन दिमाग में करने बिना पेन चलाए सीधे आज, ये सारी एक्टिविटीज से दिमाग शार्प होता है, कैलकुलेशन स्किल और अच्छी हो जाती है, 15 मिनट बैठ के करोगे तो बहुत काम आएगा। फिर लिमिटेशन मेरी 5 नंबर पे आ जाती है, लिमिटेशन फिर बहुत ज़्यादा फिर से होने लगता है, मेरी लिमिटेशन वहाँ है, तो आप भी करिए ऐसे, ठीक है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर क्या करना है, 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, दिमाग में करो, अभी कर सकते हैं, हम शुरू भी कर दिए, बट इसको करने से when you will do हाँ 35/27 यहाँ नहीं सेकंड वाले का यहाँ 8 + 27 करना है, ठीक है, 3 और 5, ठीक है, 35 हो गया, वो तो इतना, वो तो पहले ही हो गया था, इसको कौन करता है, हम ये करने की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ 8 + 27 का स्क्वायर अपॉन 27, 8 + 27 स्क्वायर अपॉन, ये करना है, ये करो तुम निहार का, तुम्हारा इलाज यही है, तभी कर पाओगे, ठीक है, ठीक है हीरो, पीछे पेन ही नहीं चलती तुम्हारी, ये सारी बेसिक्स आपके वीक है इसीलिए आप ये सब नहीं कर पाते हो, ठीक, तो फिजिक्स को गाली मत देना अगली बार, रीजन कुछ और है। चलिए ये क्वेश्चन करके क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिना पेन चलाए बता दें सर, पहला x³/3 माइनस cos x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस sin x माइनस sin x, फिर लास्ट में log x, खत्म, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या करना था, फर्स्ट फॉर्मूला यूज लिख देता हूं मैं यहाँ पे सारे,
ठीक है, पहला फॉर्मूला x टू द पावर n dx इट विल इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन जॉन, ध्यान दीजिएगा मैं ये करवा रहा हूँ, देखना फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be equal to sin x, then integration of 1 upon x will be equal to log base e x, just put the values here, ठीक है। so integration of x square, I am opening the bracket, bracket open कर रहा हूँ, तो dx क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस integration of 1 upon x dx. Is it clear? Okay. Next, so what is the value of n for this formula? The value of n is 2. Value कितनी है 2, तो it will be equal to 2 plus 1 upon, निहार के बिना देखे करो तभी कुछ कर पाओगे। Next, minus integration of cos x, integration of cos x is so minus sin x plus integration of 1 upon x dx is log base e x. So the final answer will be x cube upon 3 minus sin x plus log साइन जरूर करना, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा, ये हमें पहले बता दिया, आप भी बता सकते हो जब पढ़ोगे तब। कहाँ है, हो गई, चल ठीक, करो कोशिश करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई क्लास, इंडिकेशन हो जाएगा, हाँ बहुत आसान है, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, व्हाट इज होमवर्क, तो आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैंने बताया था, चलो एक आंसर बता दो तो होमवर्क समझ में आ जाएगा, कर पाओगे कि नहीं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होगा, मुझे तो ऐसे लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पैरेलली लिख के लाने हैं, ठीक है। क्या करोगे, एक तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखोगे, एक तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। खुद से गूगल करके नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। थैंक यू। क्लास स्टार्ट होगी इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है।